हेलो बच्चों। अभी तक हमने स्टैक इंट्रोडक्शन और स्टैक इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से यूजिंग एरे एंड लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन या डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन ये पिछली क्लासेज में पढ़ा। आज हम एक ही स्टैक में, एक ही एरे में मोर देन वन स्टैक मेंटेन रखना एंड एक लिस्ट को स्टैक यूज करके रिवर्स करना, तो ये दो काम करेंगे। So today's target is to understand how to maintain more than one stack in single array, and the second is reversal of a list using stack. तो पहले हम ये लेते हैं कि कैसे एक ही एरे में एक से ज़्यादा स्टैक मेंटेन की जा सकती है। Now you see here maintaining two stacks in a single array, तो हमको कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। एक एरे है, जैसे ये एक एरे है, मैंने इसको 20 साइज का लिया है, तो 0 से लेके और इंडेक्सिंग हो रखी है 19 तक। सो इंटीजर S20, सो दिस इज S20, 0 1 2 3 अप टू 19। सो दिस इज एन एरे। नाउ आई वांट टू मेंटेन टू स्टैक इन इट, so we need to plan means where will be the uh, top 1 and top 2, from where they will start, when there will be overflow in stack 1, when there will be overflow in stack 2, and so on. So you can plan in different ways. So I have taken two point indexes, top 1 and top 2. So in my plan, what I want is top 1 equals to -1. So first stack will move in this way, it will go up, and the second step will come this way. So it will come down. So what I'm planning is top 1 will be -1 if stack 1 is empty, and top 2 equals to 20 if stack is empty. Means there is no element in stack 2, then this top will be on position number 20. And if there is no element in stack 1, this top 1 will be on -1. Then I will keep filling up the elements. If I push some elements in top stack 1, then this top 1 will go up, 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 up. If I push some elements in stack 2, then this top 2 will come down, 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 down. In this way, I'm planning. So we can take a condition overflow. So when the overflow will occur, if top 2 equals to top 1 plus 1, so say I have inserted 10 elements, then this top 1 will at 9, and if I have inserted 10 elements here in second stack, then this top 2 will be at 10. So both the stacks are full in this way. This is coming in this side, this is coming in this side. So we will consider that there is an overflow if top 2 equals to top 1 plus 1, then there will be no insertion. Now how to push? So to push, you increase top 1, and then new element will be stored at S top 1, S top 1. And if you want to push in stack 2, then what you'll do, you will decrease this top 2. Like it is on 20, it is empty, so you will bring it to 19, and first element will be stored here. Then next element you will bring it down 18, and then second element will be stored here. So in this way it will move. So for push, I have planned that top 2 minus minus, and then we will push the new element at S top 2. Similarly, in case of pop, you can plan that whenever you will pop out something from stack 1, then top 1 will be minus minus. And if you are popping out something from stack 2, then top 2 will be plus plus. So in this way, you can plan and store two stacks in a single array. You can also store multiple stacks, n stacks in a single array. But before doing that, you do it two stacks in a single array. So now we can develop a program for it, but that program I will not ask you in the lab, because I want you to implement a stack using array and stack using dynamic memory allocation first,
And if you are very comfortable with all the implementation in this lockdown period, then only you go for this implementation of two stacks in a single array. So I'm not going to ask this from you in the classroom lab, DSA lab classroom. I'm not going to ask. So you whether implement it or not, but you understand it, that how to answer if in examination it is asked that how you will maintain two stacks in a single array. Then you can explain in this way that we have a plan, array is there, then we will take two stacks in this way. Now, if I want to develop a program, then I need to modify our previous program. So one thing is menu modification. So pop, push, display. So these are the choices from the user, but one choice, one more choice, or one more thing user will tell us, that stack number, that on which stack the user wants to work on, first stack or second stack. And accordingly, if a user wants to work on first stack and choose operation push, then push operation will be performed stack 1. If user wants chooses the stack number 2 and then it chooses the push operation, then push will be performed on stack number 2. But remember, there will be only one push operation. You are not going to write two push operations in the program. So push operation will be only one, and it will push according to the user's choice of stack number. So now see how this program will work. See, these are the file inclusion which you have already done in previous programs also. So this is now the global variables. So global variables int as 20. So I have taken this time the size of array is 20. Top 1 equals to -1 and top 2 equals to 20. So this is initial values of top 1 and top 2. Top 1 will indicate the topmost position or topmost element of stack 1, and top 2 will indicate topmost element of stack 2. Now these three functions we are going to use: void push, pop, and display. Now you come to see this main. So these are the file inclusion, global variables, two variables, top 1, top 2, then push, pop, and display. And then we are coming to the next main. So see, choice and stack number Sn. So I have taken this new variable Sn here. The menu is same as we have created previously, but what new is that I have asked here printf choose the stack 1 or 2. So user will choose some stack 1 or 2 in, and it will go and stored in Sn. Now the same choices: press 1 for push, 2 for pop, 3 for display, and 4 for exit. And his user's choice will be scanned in choice variable. So this is choice variable. Now you probably have understood that what minor difference there in this menu and the previous menu. The only thing is that we have asked the user to enter SN stack number. Now here you see the choice, switch choice, push break, case 2, pop break, case 3, display break, 4, printf by break, and default invalid choice. And then this switch is closed, the while loop is closed, get ch, and this main is closed. So this is same as our previous programs. Now you see here how to modify pop and push. So in push operation, what I do, I declare some integer x. We will read one element if there is no overflow. Then this is for checking overflow. So if there is an overflow, whether it is stack 1 or stack 2, it is immaterial. If there is overflow, it means element cannot be inserted in stack 1 or stack 2, whatever. So what we are doing, if top 2 equals to top 1 plus 1. So if this is the condition, then this is an overflow. So it is overflow, message, and nothing will be done. Now else, if there is no overflow, then we need to perform push. And push will be performed in stack 1 or stack 2 according to the choice of user, which is stored in Sn.
So here I have taken enter the value and then scanned in X. So the new value is now in X. Now you want to insert or push it into the stack. So which stack? So if Sn equals to 1, then you will do top plus plus and S top 1. Top 1 is equals to X. Else if Sn equals to 2, then top 2 minus minus. So you are coming down and S top 2 is now X. And if user have not entered stack number 1 and stack number 2 properly, maybe he is entered stack number 3 which you are not maintaining, then in that case you will write else printf no such stack, then this else is closed, get ch, and this push operation is closed now. So I hope that you are getting how to write push when you are maintaining two stacks in a single array. Now we are coming to the next program, operation pop. So how to write pop? Let us see here how to modify. You are maintaining two stacks in a single array. So here you see, first of all, I'm eliminating the possibility of underflow. If there is underflow, then there is no need of popping out. So when underflow will come, say if user is working on SN1 and top is equals to -1, top 1 is -1. So this condition SN equals to 1 and top 1 is equals to -1, then it is overflow condition. Or Sn equals to 2 and top equals to 20. In that case also there is underflow. So if user is choosing for stack 1 and it is empty, or he is choosing for stack 2 or it is empty, then this is underflow case. Now let us see where if there is no underflow, then what? So then else. So if else. So if underflow is not there, then if Sn equals to 1, then you will pop from stack 1. So printf percentage is popped out and S top 1 you have displayed. Top 1 is equals to minus minus. Top 1 minus minus. Top 1 को एक कम कर दिया है. Else if Sn equals to 2, मतलब यूजर जो पॉप करना चाह रहा है वो स्टैक नंबर 2 से करना चाहता है, तो आपने स्टैक नंबर 2 का जो पॉप वैल्यू है वो डिस्प्ले करा दिया. परसेंटेज डी इज पॉप्ड आउट एस टॉप 2 and then top 2 plus plus. You see here this top 2 plus plus because we have planned like that. जो जैसा आप प्लानिंग करेंगे वैसा ही प्रोग्राम लिखेंगे. तो हमारा स्टैक में हमने क्या मेंटेन किया है कि सेकंड स्टैक है वो ऊपर से नीचे की तरफ उल्टा लटका हुआ है, तो उस केस में फिर हम टॉप को प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे. Else printf no such stack means यूजर SN1 और 2 से ही एंट्री नहीं करता है, तो फिर हम no such stack बोल के और ये काम रोक देंगे, मतलब पॉप नहीं करेंगे, और गेट ch लगा के पॉप बंद हो गया. सो इन दिस वे दिस इज ओवर. नाउ यू वांट टू डिस्प्ले, सो यूजर विल टेल यू स्टैक 1 डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, स्टैक 2 करवाना चाहते हैं. सो आई हैव वन इंटीजर I that is for loop purpose only. If user want to display stack 1 Sn equals to 1, then if top 1 equals to -1, printf empty because stack खाली है. else, अब else आप उसको प्रिंट कर दीजिए. तो आप सोच के बताइए कि स्टैक 1 कहां से कहां तक है, एम्प्टी नहीं है, तो वो 0 से लेके और टॉप 1 तक है. 0 से लेके टॉप 1 तक है. तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू टॉप 1, i प्लस प्लस और प्रिंटf परसेंटेज डी न्यू लाइन एंड देन si. सो ये प्रिंटिंग हो गया स्टैक 1 का. अगर स्टैक 2 के लिए प्रिंटिंग बोला गया है, यूजर ने चूज किया Sn इक्वल्स टू 2, तो आपको चेक करना है कि इफ टॉप इक्वल्स टू 20, तो फिर वो स्टैक एम्प्टी है, तो एम्प्टी का मैसेज आ गया. एल्स वो स्टैक ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम उल्टा चल रहे हैं, हम उसको 19 से टॉप 2 तक डिस्प्ले करवा रहे हैं. सो 19 से टॉप 2 और i माइनस माइनस कर रहे हैं. तो आप चाहें तो इसको, ये एक्चुअली डिस्प्ले के टाइम
19th एलिमेंट सबसे पहले हो जाएगा और वो नीचे आएगा। तो जैसा एक्चुअली टॉप जो है वो सबसे नीचे एलिमेंट आएगा इस वाले सिस्टम में। तो आप चाहें तो इसको टॉप 2 से लेके और 19 तक प्रिंट करवा दें प्लस प्लस करके, वो भी चलेगा। और बल्कि मुझे लग रहा है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा कि जो सबसे ऊपर एलिमेंट है वो ऊपर दिखेगा अगर आप इसको टॉप 2 से डिस्प्ले करवाना शुरू करेंगे और प्लस प्लस करते हुए चलेंगे आई प्लस प्लस और 19 तक जाएंगे तो। अदरवाइज ये अभी उल्टा दिखेगा आपको, और वही प्रिंट है परसेंटेज डी एम परसेंट एन स्लैश एन लगा के आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और एल्स का जो ऑप्शन दिया है वो है नो सच स्टैक, यानी कि ना तो यूजर ने सही से चॉइस दी है कि स्टैक 1 करना चाहते हैं या स्टैक 2 करना चाहते हैं। तो जिन बच्चों को बहुत कंफर्टेबली ये समझ में आ रहा है कि स्टैक्स का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, और वो जो बहुत कंफर्टेबली आराम से लिख लिए हैं और अपनी फाइल्स जो प्रोग्राम्स हैं वो डीएसए लैब की क्लास में सबमिट भी कर चुके हैं, वो स्टूडेंट चाहें तो इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लेकिन जो स्टूडेंट अभी तक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक नहीं किए हैं, ना एरे से या फिर लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन से जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए हैं, उनको मेरा सुझाव ये है कि वो इसका प्रोग्राम नहीं करेंगे, पहले वो इम्प्लीमेंटेशन वाले प्रोग्राम ही करेंगे। और इस प्रोग्राम करने के बजाय हाउ टू मेंटेन 2 स्टैक्स और मोर देन 2 स्टैक्स इन अ सिंगल एरे, इसके ऊपर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स तैयार कर लेंगे। उनका यही काम है केवल। लैब वाली क्लासरूम में मैं आपसे ये प्रोग्राम सबमिशन के लिए नहीं कहूंगा। अब हम चलते हैं अगली बात पे, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल रिवर्सल और रिवर्सिंग अ लिस्ट यूजिंग स्टैक। अब हम क्या करना चाहते हैं, स्टैक बनाए हैं तो उसका कुछ यूज भी तो करें, कुछ एप्लीकेशंस। तो ये एक पहला एप्लीकेशन मानो कि हम एक लिस्ट हो एरे में, तो उसको रिवर्स करने में स्टैक को काम में ले सकते हैं। और ये बहुत आसान सा तरीका है इसका। आप देखें, आपने फर्स्ट ईयर में एरे पढ़े हैं, तो देखो क्या करेंगे। ये यहाँ मैंने केवल समझाने के लिए बनाया है, प्रोग्राम की बाद में बात करेंगे। मान लो एक एरे में आपके पास लिस्ट है, इसको आप रिवर्स करना चाहते हैं। तो आप इसमें जैसे 6 एलिमेंट्स हैं, n इक्वल टू 6, ये 0 से लेके 5 तक स्टोर्ड है, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अब आप क्या करें, इसको 1 बाय 1 एक स्टैक में पुश कर दें एलिमेंट्स को। जैसे हम यूजर से पूछ पूछ के एलिमेंट ले रहे थे ना, एंटर न्यू एलिमेंट, तो यूजर से ना पूछें एंटर न्यू एलिमेंट स्टैक के लिए, वो तो एरे में ऑलरेडी हैं, वो यूजर से पहले पूछ चुके हैं। तो उनको पुश करते जाएं बस। थोड़ा स्टैक का प्रोग्राम मॉडिफाई करना पड़ेगा, पुश वाला, उसको कर देंगे हम मॉडिफाई। तो पुश कर दें, तो पुश होंगे तो क्या होगा, सब 20 सबसे नीचे चला जाएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 60, फिर 70। और जब सारे पुश हो जाएं, तो सारे पुश होने के बाद आप इसको 1 बाय 1 पॉप करके वापस से एरे में डाल दें। तो सबसे पहले पॉप करेंगे तो 70 आउट होगा, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20। तो एरे में जो आएगी लिस्ट वो रिवर्स आ जाएगी। तो अगर आपके पास एक एरे में लिस्ट है और आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो स्टैक आपकी मदद कर सकता है। इट कैन बी यूजफुल। यू ओनली पुश ऑल द एलिमेंट्स 1 बाय 1 इन स्टैक and then pop all the elements 1 by 1 and restore in the array। तो देखिए इसके अंदर क्या प्रोग्राम में मॉडिफाई करने पड़ेंगे अपन को। हम स्टैक बना रहे हैं, रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग का प्रोग्राम लिख रहे हैं स्टैक के थ्रू। फाइल्स इंक्लूड करना है जैसा मैंने हमेशा आपसे कहा है। फिर ग्लोबल वेरिएबल ले लेने हैं, तो मैंने एक इंटीजर s10 और टॉप इक्वल टू -1 ये ग्लोबल ले लिए। और पुश और पॉप के प्रोटोटाइप यहाँ डिक्लेयर करने हैं। डिस्प्ले ऑफ स्टैक हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको स्टैक डिस्प्ले नहीं करवाना है। हमको क्या करना है, एक लिस्ट को रिवर्स करना है। तो स्टैक का काम में लेंगे, पुश और पॉप काम में लेंगे। तो पुश और पॉप के ही प्रोटोटाइप यहाँ लिखेंगे। अब मैंने यहाँ प्रोटोटाइप लिखे नहीं है, यहाँ लिखने हैं। वो आप जब पुश पॉप में मॉडिफिकेशन होंगे तो देखेंगे कि उनके प्रोटोटाइप कैसे बनेंगे। तो चलिए पहले मेन देखते हैं। अब देखो, एक प्रोग्रामर को हमेशा सोचना होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे कैसे करना चाहिए। तो अब हम कोई मेन्यू वगैरह नहीं दे रहे मेन में। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम स्टैक के लिए पुश पॉप यूजर से पूछ पूछ के नहीं करेंगे। अब इस बार हम क्या करना चाह रहे हैं, एक यूजर से एक लिस्ट लेंगे और उसको रिवर्स करके उसको देंगे।
तो देखो मैंने एक इंटीजर आई और एन लिए हैं और एक इंटीजर एरे लिया है साइज 10 का। ये काम आप फर्स्ट ईयर में बहुत कर चुके हो, रीड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक एरे में एलिमेंट लेने हैं। सबसे पहले यूजर से पूछा प्रिंट एफ हाउ मेनी एलिमेंट्स, फिर यूजर बताएगा वो स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट एन, तो ये एन में चला गया। अब यूजर को बोला प्रिंट एफ एंटर दी एलिमेंट्स, तो यूजर वन बाय वन एलिमेंट एंटर करेगा। ये मैसेज आप जैसा अच्छा चाहें तो दे सकते हैं, एंटर एलिमेंट्स की जगह एंटर एलिमेंट्स वन बाय वन, जो चाहें जैसे चाहें आप ये मैसेज दे दें। फिर ये लूप लग गया फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और स्कैन हो रही है वैल्यूज, और स्कैन होके कहाँ जा रही है, एम परसेंट ए आई, तो स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट ए आई। तो ये जो काम है ये आप फर्स्ट ईयर में बहुत बार कर चुके हैं। ये मैंने एक एरे में एन एलिमेंट्स रीड कर लिए। अब हमने कहा था कि इस एरे को रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को वन बाय वन पुश कर देंगे, किसमें, एक स्टैक में। तो जो स्टैक वाला एरे है वो अलग से स्टोरेज स्पेस है, वो तो ये है एस। तो हम क्या करेंगे, पुश को कॉल करेंगे। तो कितनी बार, हर एक जितने एलिमेंट्स एन एलिमेंट्स, तो आई इक्वल टू जीरो टू आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और पुश को कॉल किया। लेकिन आप देखिए पुश में मैंने ये वैल्यू एरे से भेज दी है, यहाँ से ये इनपुट आर्ग्यूमेंट बना के, और पुश के अंदर वो वैल्यू यहाँ से भेज दी। पहले हम क्या कर रहे थे पुश में, पहले हम यूजर से पूछते थे व्हाट यू वांट टू इंसर्ट या पुश, एंटर द वैल्यू, उसको पुश करते थे। अब हम यूजर से पूछ नहीं रहे हैं, हम तो इस एरे में से उठा उठा के वैल्यू पुश के लिए भेज रहे हैं। और जब सारे एलिमेंट पुश हो जाएंगे, ये लूप देखो यहाँ बंद हो चुके हैं, ये लूप, इस लूप के अंदर केवल एक ही लाइन है, ये वाली। उसके बाद वही आई इक्वल टू जीरो से लेस देन एन, आई प्लस प्लस, तो सभी एलिमेंट को वन बाय वन पॉप करके एरे में स्टोर कर देंगे। तो ये ए आई इक्वल टू पॉप लिखा है। ये जो चेंज है ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे फंक्शंस है, तो फंक्शंस में थोड़ा आप चेंज कर दिया, एक में इनपुट आर्ग्यूमेंट डाल दिया है, इससे कोई वैल्यू रिटर्न करवा दी है, क्योंकि हम वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवा रहे हैं, वैल्यू एरे में डाल रहे हैं। तो अब हम देखेंगे इन दोनों को। और सी प्रोग्रामिंग के अगर आप प्रोग्राम्स लिखते आए हैं तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। अब आप देखिए जब हम एरे रिवर्स हो जाएगा तब मेन में केवल यही काम कर रहे हैं कि इस एरे को वापस डिस्प्ले करवा रहे हैं। लिस्ट आफ्टर रिवर्सल प्रिंटिंग कर रहे हैं फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश टी ए आई। देखो ऐसे लिस्ट को हॉरिजॉन्टल प्रिंट करवाना है इसलिए मैंने स्लैश टी लगा दिया है। तो ये लूप से उसको रिवर्स होने के बाद प्रिंट करवा देंगे। अब एक बार आप पुश और पॉप में जो मैंने चेंज करे वो देख ले। देखो पुश में क्या था कि हम चाह रहे थे कि बाहर से वैल्यू नहीं लेनी है, एरे से वैल्यू आ जाए। तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी, ये इनपुट आर्ग्यूमेंट है इंट एक्स फंक्शन का। तो वो वहाँ से जो अपने ए आई भेजा था वो ए आई यहाँ आ जाएगा, इसी को पुश कर देना है। और पुश कैसे करते हैं, टॉप प्लस प्लस करो और एस टॉप इक्वल टू एक्स, ये हो गया। अब देखो आप एक चीज यहाँ पूछ सकते हैं कि सर इसमें ओवरफ्लो का क्या हुआ। इसमें मैंने ओवरफ्लो छोड़ दिया है, इसमें मैंने ओवरफ्लो हैंडल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इसलिए कि अगर एरे से एलिमेंट ले रहे हैं, यूजर से पूछा है, तो या तो फिर आप वही हैंडल कर लो। जैसे मान लो आपने एरे डिक्लेयर किया है A10, और अगर वो यूजर कहता है कि मेरे पास 20 एलिमेंट्स हैं, तो फिर यहाँ पुश में क्यों करना है, वो तो वहां पे 20 एलिमेंट्स हो गए तो A10 में तो नहीं जा पाएंगे ना वो। तो जो करना है वही होना चाहिए। तो एक बार के लिए हम उस चीज को छोड़ देते हैं कि यूजर गलती करेगा और 10 से ज्यादा एलिमेंट देगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैंडल ही नहीं किया है ओवरफ्लो। बस सिंपल वो जो एलिमेंट ऊपर से आया, क्योंकि वो फिक्स एलिमेंट भेजेगा n एलिमेंट्स, और n हमेशा 10 से कम होगा, ये यूजर और प्रोग्रामर ने मान के चला है। तो सिंपल दो लाइन में टॉप प्लस प्लस एस टॉप इक्वल टू एक्स। जो फर्क आया वो ये है कि पुश का इनपुट आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, और हम यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप एंटर करो वैल्यू, वैल्यू पहले से ही भेज दी गई है, जहाँ पुश कॉल हुआ वहां से भेजी गई। देखें वापस, ये देखिए पुश कॉल हुआ था तो जो वैल्यू भेजी गई थी वो मैं आपको वापस दिखाता हूँ। तो थोड़ा पीछे आ गए हम, यहाँ थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखो जब हम रिवर्स करने की बात कर रहे थे तब हमने ये वैल्यू पास करवा दी थी, तो वही वैल्यू यहाँ पहुँच गई और इस एक्स में आके टॉप प्लस प्लस होके उसमें इंसर्ट हो गई। अब इसी तरह से जो पॉप है
उसमें यहाँ देखिए इसका रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है, इसका रिटर्न टाइप इंट है। ये सब आप सी प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं चीज़ें कि रिटर्न टाइप क्या होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंट एक्स इक्वल टू एस टॉप, यानी कि एक कॉपी कर लिया, जो सबसे ऊपर ऊपर एलिमेंट था उसको कॉपी कर लिया, टॉप माइनस माइनस भी कर दिया, और रिटर्न एक्स करने से ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ये पॉप है जो कि एक वैल्यू रिटर्न करता है, ये डिस्प्ले नहीं करता है। इसी तरह से ये पुश है जो एक वैल्यू, यूजर को एंटर द वैल्यू नहीं कहता है, ये वैल्यू इनपुट आर्ग्यूमेंट के तौर पे लेता है और फिर काम करता है। तो इस तरह से दो तीन लाइन का ये पॉप लिख के हमने वैल्यू रिटर्न कर दी। ये रिटर्न वैल्यू कहाँ जाएगी, ये रिटर्न वैल्यू वहाँ जाएगी जहाँ आपने ये प्रोग्राम लिखा था मेन वाला, जिसमें आपने ये काम किया, ये है इक्वल टू पॉप। तो अब इस तरह से ये दो छोटे छोटे पॉप पुश फंक्शन लिख के स्टेप को यूज कर रहे हैं आप, और उस लिस्ट को आपने रिवर्स कर दिया है। अब जो आपने प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन, अब मैं आपको बताता हूँ कौन से प्रोटोटाइप होंगे। पुश का प्रोटोटाइप होगा वॉइड पुश, और ब्रैकेट में इंट आएगा क्योंकि ये इनपुट आर्ग्यूमेंट ले रहा है। और पॉप के लिए ब्रैकेट में तो वॉइड ही है लेकिन ये रिटर्न कर रहा है, इसलिए यहाँ इंट आएगा। तो ये जो दो प्रोटोटाइप हैं, वॉइड पुश इंट और इंट पॉप, ये दोनों प्रोटोटाइप आपको प्रोग्राम लिखते टाइम यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं, यहाँ पे यहाँ यहाँ डालने हैं वो। तो इस तरह से करके आप ये रिवर्सल ऑफ ए लिस्ट यूजिंग स्टैक, ये प्रोग्राम भी आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में बातें समझ में आई होगी। ये दोनों आसान भी हैं, और इनके प्रोग्राम्स में आपसे लैब क्लासरूम में नहीं मांगूंगा, लेकिन जो बच्चे कर सकते हैं उनको मैं कहता हूँ वो अवश्य करें, और जिनको अभी तक इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुए हैं वो इसको ना करें। वो इसके नोट्स इस तरह से बनाएं कि आपकी परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि किस तरह से आप रिवर्स करेंगे तो आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसका दे सकें। बस इस तरह से इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस क्लास की जो भी प्रॉब्लम होंगी वो हम अपनी गूगल मीट क्लास के अंदर, जो भी रिस्पेक्टिव क्लास होगी वहाँ डिस्कस करेंगे। प्रॉब्ली ये होगी 17 तारीख को, 17th। तो 17th को हम इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तब तक थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग DSA।